میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 426۔ آج کا شو میرا ہے 426 اور شو کا ٹاپک ہے نجات اور راست بازی۔ شو کا ٹاپک ہے نجات اور راست بازی۔ اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ آج کی جو تلاوت لی ہے پالوس رسول کا خط تیتس کے نام، اس کی 3 باب، اس کی 5 سے 7 آیات تک پڑھوں گا۔ اور یوں لکھا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کا ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جیسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کی، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کے امید کے وارث بنے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے۔ اور بہت خوبصورت بات جو میرا ٹاپک ہے نجات اور راست بازی کو، ہمیں نجات اور راست بازی کیوں ملی؟ اس کے نہیں نجات اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، مطابق اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس نے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، روح القدس کے قدرت سے یا نئی پیدائش کے وسیلے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ تو آج کا شو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ نجات اور راست بازی کے حوالے سے، کہ ہمیں پہلے نجات ملے گی یا راست بازی۔ اگر اس پر یہ بات کروں کہ اگر ہم راست باز بنیں گے، خدا کے حکموں پر چلیں گے، اس کی راست بازی کے کاموں کو مانیں گے، تو نجات تو ہمیں خدا یسوع مسیح نے دے دی، وہ تو نجات اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ لیکن جب وہ سارے کام کر کے چلا گیا آسمان پر، اپنے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا، تو ہمیں نجات یافتہ لوگوں میں وہ شامل کر گیا۔ ہم اس کے نجات یافتہ لوگوں میں مسیح کو ماننے والے، مسیح کو جو بھی ہم ہیں، اس کے حکموں کو، اس کی جو بھی اس کے حکم ہے، جو بھی آئین ہے، جو بھی ہے، ہم اس کو ماننے والے، اور ہم نجات ہمیں مل گئی۔ اور راست بازی کے وسیلے سے اور روح القدس کا نیا غسل لینے کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ نجات اور راست بازی ملی ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو بھی کہا تھا کہ اگر کوئی انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو نیکودیمس جو بھی پریشان ہو گیا، کو بہت بزرگ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا، لیکن اس نے بھی خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے حوالے سے نئی پیدائش کی جو بات کی تھی، اور ہمیں نئے سرے سے روح القدس کی جو پیدائش کے وسیلے سے ہمیں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ہمیں نجات، یہ راست بازی کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں روح القدس کا غسل لینے سے، سب کچھ اس کے انڈر ہونے کے یا اس کی ساری تابعداری کرنے سے، یہ سب کچھ خدا کی رحمت ہوئی ہے، اس کا فضل ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک خوبصورت شعر پڑھوں گا، حبیب جالب، کیا بات ہے۔ تو انہوں نے لکھا، خوش شام جو کرے فنکار ہے وہ جو، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن خداوند کے سامنے ہمیں نجات اور راست بازی حاصل کرنے کے لیے کسی خوش آمد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ ہم
दुनियावी तौर पर तो चमचागिरी या खुशामद कर सकते हैं, लेकिन खुदा को इसके सामने नहीं। लेकिन मैं इसको दुनियावी तौर पर यूं लूंगा कि खुशामद जो करे फनकार है वो, जो सच बोले यहाँ गद्दार है वो। हम चूंकि मैं जब इस शेर को लिखा और मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा कि झूठे लोग जो जिनको फनकार बोला है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं झूठ को सच साबित करने के लिए, लेकिन हमने से 10 आदमी सच्चे आदमी जो खुदा की बातों को, उसकी निजात की बातों को, उसकी रास्तबाजी की बातों पर अमल करते हैं, हम 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते उस झूठ को झूठा साबित करने के लिए, लेकिन 100 आदमी झूठ को सच साबित करने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम सच्चे जरूर हैं लेकिन हम दिलेर नहीं, और जबकि हमारे पास खुदा का रहम, खुदा का फजल, खुदा की रूह पाक हमारे पास मौजूद है, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? झूठे लोग, मुनाफिक लोग, बेईमान लोग सब इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हम मसीह के मानने वाले जो है वो इकट्ठे नहीं। और जो, जैसे दूसरी लाइन है, जो सच बोले वो यहाँ गद्दार है। जो मसीह की बातें करे, जो निजात की बातें करे, तो उसको कहते हो छड़ो यार, ये तो पलूस रसूल दा पोतरा है। तो हम तो वो लोग हैं कि जो खुदा को मानते हैं, हम उसको भी जो है वो किसी न किसी तरीके से टार्चर करते रहते हैं। और यही वजह कि हम रास्तबाज और निजात के वारिस नहीं बन सकते। दूसरा बहुत खूबसूरत शेर जो विलियम बशारत गिल साहब ने, बहुत खूबसूरत एक पोस्ट जो आल्बनी में है, मेरे दोस्त हैं गिल साहब हैं, उन्होंने कहा मुझे मुन्नू कोई जाने या ना जाने, मिन्नू कोई जाने ना जाने, तेरे नाम न मिले जलाल यस्सु मसीह। वाकई मिन्नू कोई भी ना जाने, लेकिन अगर हम यस्सु मसीह को जानते हैं और हम उसकी हमदो सताइश करें, तो ये बात है कि उसके नाम को जलाल मिले, तो उसकी हमदो सताइश हो। और ये बात जरूरी है कि हमें तो जानना, कोई ना जाने, लेकिन मसीह के वसीले से हमने हर कोई जान सकता है। उसके बाद जो मैं बकायदा शुरू करता हूं, निजात और रास्तबाजी, बहुत अच्छी पोस्ट मेहदी राजा ने लिखी। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, तेरे रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका, बिल्कुल ठीक बात है, ना मुझे सलीका इल्तिजा का, ना मुझे शौर नमाज का। ये जाहिर है, ये जितनी पोस्टें मैं अक्सर अपने शो में कहता हूं, बल्कि किसी ने एक दिन मुझ पर सवाल भी किया मैसेंजर पे, कॉल भी किया, अल्लाह के हवाले से क्यों आप अल्लाह बोलते हैं? पहली बात तो मैं कोई इसमें बुराई नहीं समझती, क्यों अल्लाह के नाम तो बहुत नाम है, हर कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, नाम उसी का ही है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा के बहुत नाम है, हर मजहब ने, हर जो कौम है उसने अपने, लेकिन सारे जलाल खला खुदा को ही देते हैं। तो मैं ये कहने वाला था कि चूंकि ज्यादा जो पोस्टें, ज्यादा शायरी, बहुत सारी शायरी जो है मसीही जो शायरी, वो हमारे बहुत सारे बहुत खूबसूरत लिखने वाले लोग हैं, लेकिन ज्यादा पोस्टें मुस्लिम लोग, मुस्लिम भाई, उनकी जो पोस्ट लाइनें वहां से आती हैं। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत, ना मुझे सलीका इल्तिजा का, ना मुझे शौर नमाज का। बिल्कुल मैं जाती तौर पर बहुत बहुत कुछ सोचता है इस हवाले से कि पहली बात तो मैं स्वाय बचपन से खानदानी तौर पर मैं रोमन कैथोलिक, और इस बात का इजहार मैं करता रहता हूं, लेकिन मैं किसी फिरके के या किसी भी कोई भी चर्चा में किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि नाम खुदा का लेते हैं, ये तो हमने खुद अपने आप को बांटा हुआ है। तो रोमन कैथोलिक या कोई भी सल्वेशन आर्मी, प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान का, प्रेस्बिटेरियन का होना, वो सब खुदा की। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा था कि वाकई
मैं अगर सोचता हूं तो मुझे वाकई अभी तक वो लफ्ज नहीं मिलते जो खुदा की बंदगी के लिए उसकी खूबसूरत। लेकिन ये भी है कि जो टूटे फूटे लफ्ज आप दिल से अता करते हैं, दिल से कहते हैं और उसको समझ आ जाती, वो तो हर चीज को समझता है, हर जुबान को समझता है। तो इसलिए सलीका हो ना हो, जो कुछ भी आप कहते हैं वो समझता है, वो हमारी दुआ समझता है। हमें सलीका हो ना, लेकिन इल्तिजा करने का, दरखास्त करने का, अपनी मना जाते उसके सामने रखने का सलीका जरूर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत। उसके बाद ये एक्चुअली मेरे ख्याल इल्लामा इकबाल की जो ज्यादा चीजें होती हैं उर्दू गजल में, तो उर्दू गजल की बहुत अच्छी पोस्ट है। तेरी कदर, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या। बिल्कुल बेहिसाब है, बेहिसाब है वुसअतें उसकी, जितनी मर्जी हम देखें उसकी, किसी तेरी वुसअतों का हिसाब क्या है। बहुत बुलंदियों से लेकर जमीन के इंतहा ग्रह, जहां भी देखे, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखे, उसकी कुदरतों का कोई हिसाब नहीं। तू महीत आल में रंगो बू, तू महीत आल में रंगो बू, तेरी शान जुल्ले जलाल है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत खुदा के शान में ये जिसने भी लिखे, मेरे ख्याल इल्लामा इकबाल की शायरी ऐसी होती है, तो बहुत खूबसूरत लिखा। तो उसके बाद फिर एक और पोस्ट है उर्दू गजल की, मेरी किस्मत में ऐसा कोई सजदा कर दे, मेरी किस्मत में ऐसा कोई सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम दिल और जान से कहते कि हम जब खुदा के साथ हमारा राब्ता होता है तो फिर हम दुनियादारी को भूले होते हैं। तो ये बात बिल्कुल, चाहे सजदे में हो, चाहे घुटने टेक के हो, चाहे खड़े हो के हो या बैठ के हो, किसी भी हवाले से हो, तो खुदा के सामने जब ये बात कही कि जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे, उसने तो मदावा कर दिया, उसने तो अपना बेटा हमें बख्श दिया, जिसने हमारी खातिर जान दे दी। लेकिन हम उस पर अमल करें, उसने तो नजात और रास्तबाजी के रास्ते सारे दिखा दिए हैं, हमें उन पर अमल करके चलना है और गुनाहों की माफी तो मिल जाएगी, क्योंकि उसने जान की कुर्बानी ही हमारी गुनाहों की माफी के लिए दी। और ये बहुत अच्छी पोस्ट, दूसरी, सारी दुनिया से चिरा कर मुझे अपना कर दे, सारी दुनिया से चिरा कर मुझे अपना कर दे, मेरी मट्टी को खुदा सोना कर दे। ये बहरहाल हमारी जो तरीकाकार है दुआ का, या जो तरीकाकार है, वो बड़ा फर्क है, लेकिन लिखना में बहुत फर्क है। बहरहाल जो भी खुदा के लिखे, जो भी खुदा की हमद और सताइश के लिए कोई भी लिखता है, वो बहुत खूबसूरत लिखता है, क्योंकि वो अपने ईमान, अपने भरोसे, अपने यकीन के हिसाब से ही लिखता है। तो वाकई मेरी मट्टी को खुदा सोना कर दे, लेकिन मट्टी तो सोना होगी कि जब हम उसके निजात याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएंगे। मट्टी सोना तो ऐसे नहीं बन सकती, ये कुमदारी का काम तो नहीं, लेकिन खुदा के काम के सामने किसी चीज की कमी नहीं। अगर हमारे इखलाक, हमारी हर चीज, हमारे वाकई रास्तबाजी के साथ, खुदा के कामों के साथ शामिल हाल है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मट्टी सोना हो ना हो, क्योंकि मट्टी तो जमीन पर है, चाहे वो सोना है कुछ भी हो, एक्चुअली तो जो रूह है उसको मट्टी, उसको जो सब कुछ हासिल हो, तो फिर वो रूह खूबसूरत जब ऊपर जाएगी, साफ सूरत निजात याफ्ता रास्तबाजी के कामों से, तो फिर कबूलियत जो है वो बहुत अच्छी होगी। मैं तेरे चाहने वाला हूं मगर है हसरत, मैं तेरे चाहने वाला हूं मगर है हसरत, जिनको तू चाहता है मुझको वैसा करते। ये तो कोई बात नहीं कि खुदा मुझे चाहता है या आपको नहीं चाहता। खुदा तो कुल आलम का खुदा है, वो तो सबको चाहता है, वो तो सबके लिए उसने रास्तबाज के रास्ते तैयार रखे, उन रास्तों पर चल कर हमने चलना है। तो फिर ये को नहीं कि हम दूसरों को कहेंगे जैसा वो है मुझे भी वैसा करते। अगर वो बहुत अच्छा है
तो हम क्यों ना ऐसे काम करें, क्यों ना खुदा की हमदो सताइश करें, खुदा के आइन पर चले, उसके रास्तबाजी के रास्तों पर चले, उसके बेटे यीशु मसीह की तालीम पर चले, उसके हुक्मों पर चले। तो खुदा तो मोहब्बत है, मोहब्बत तो उसकी कुल आलम के साथ है, लेकिन मैं ये कहूं कि जैसा तू कर दे वैसे, ये नहीं, हम सब बराबर हैं। हमने अपने आप को खुद उसके सामने पेश करना है, तो फिर वो हमें वो अपने जैसा जरूर, लेकिन हमारी जो अखलाक हर तरह से निजात याफ्ता लोगों की तरह और रास्तबाज लोगों की तरह होना बहुत जरूरी है। मैं तेरे चाहने वाला हूं, मगर है हसरत जिनको तू चाहता है मुझको वैसा करते। एक नजर अपने गुनाहगार पे करके मौला, ये बहुत ठीक बात है। हम सब बात मांगते हैं कि मुझ गुनाहगार को माफ कर, अपने बेटे के वसीले से तू मुझे माफ कर, तू अपने जलाल की खातिर मुझे माफ कर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अगर ये सच सिर्फ मुंह ज़बानी बातें करते हैं या दिखावे के लिए या लोगों को सुनाने के लिए ये बातें करते हैं, तो वो कबूलियत नहीं हो सकती। हम निजात याफ्ता लोगों में नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि जो निजात का रास्ता खुदावंद ने अपने बेटे के जरिए किया, हमें उस निजात याफ्ता लोगों में और उस रास्तबाजी के हवाले से चलना है। और एक नजर अपने गुनाहगार पर कर दे। गुनाहगार तो वो तो इसलिए आए थे कि हम गुनाहगारों को ही बख्शे, लेकिन उस रास्ते पर चल के हम सच्ची तौबा करें तो जरूर हम बख्शे जाएंगे। अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे, आमीन। तो अपनी रहमत का हकदार तो वो करने के लिए तैयार है 24 घंटे, ना वो ऊँगता है ना वो सोता, लेकिन हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद एरिक गेल, मेरे दोस्त मैरीलैंड यूएसए से छोटी छोटी पोस्टें लिखते हैं, लेकिन खुद लिखते हैं, किसी की पोस्टें नहीं। जैसे ये पोस्टें पढ़ी हैं, ये फेसबुक से दूसरी टाइमलाइनों से या उनके जो पेज बने उनसे आती है, लेकिन जो खुद लिखते हैं बहुत ज्यादा, काफी लोग क्रिश्चियन अब लिख रहे हैं। तो एरिक गेल अक्सर छोटी छोटी पोस्ट उन्होंने लिखा, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाए, बिल्कुल कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। अगर आज आप बहुत अरूज पर हैं तो ज़वाल भी हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़वाल में हैं तो अरूज भी मिल सकता है, क्योंकि ये तो उसकी रहमत की, उसके फजल की जरूरत है कि हमें किस तरह वो हमें बख्शता। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर मैं बीमार हूं तो कल सेहतयाब भी हो सकता हूं, कमजोर हूं तो सब कुछ वापस हो। आज मुझे खुशहाली नहीं है तो वक्त बदल देगा, तो सारी खुशहाली वो दे देगा, क्योंकि उसके सामने तो किसी चीज की कमी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। उसके बाद कुछ भी हो, दूसरी बात है, कुछ भी हो, कैसे भी बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे और जरूर बदलेंगे। अगर हमारा यकीन, भरोसा, ईमान खुदा पर है तो वो हमारे हालात बदलेगा, क्यों नहीं। लेकिन हमें उन हालात को बदलने के लिए अपने आप को दिल और दिमाग के तैयार करना है रास्तबाजी के कामों के लिए, ताकि फिर खुदा सुनता है। ये नहीं कि हम एक बार दरवाजा खटखटा दें, नहीं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी अपने रसूलों को कि काजी था, उस वक्त काजी थे, और काजी था तो उसके पास एक रोज बेवा आती थी और उसको बहुत परेशान करती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि मुझे इसका फैसला करना ही पड़ेगा, ये तो मुझे बहुत दिक कर देगी, तंग कर देगी। आखिर एक दिन उस काजी ने उस बेवा की सुन ली, जो भी फैसला था पता नहीं आगे, इतना ही मतलब, इससे मतलब ये है कि खुदा का दरवाजा खटखटाते रहना चाहिए, क्योंकि वो तो कहता है मांगो दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो ये नहीं कि मैं आज आपके सामने शो करके घुटने टेक के दो एक बार दरवाजा खटखटाने के लिए, नहीं। पुराने जमाने में जब बादशाह थे तो उनके
दरबारों में भी पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर जाके सुनवाई होती थी। चूंकि हम गुनाहगार हैं और हम ये सोचे कि खुदा हम कहीं माफ कर दे तो खुदा माफ कर देगा, लेकिन सजा और जजा का मालिक वो है। बहुत खूबसूरत पोस्ट राबिया आल्बनी से, जब भी लोग आपसे बुरा चले आप उनसे बुरा ना चले बल्कि खुदावन का शुक्र अदा करें, यही वो लोग हैं जिनके वसीला से खुदा ने आपको हलीम बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अगर हम सब्र से शुक्र के साथ हर चीज को बर्दाश्त करें जो हमें बुरा साबित करने, तो उनके लिए भी दुआ करो, क्योंकि तो खुदा का हुक्म है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, तो हम उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको मुश्किलात में भी अच्छाई मिलेगी। और अब जब हर चीज बर्दाश्त करेंगे तो एक दिन तो वो सुनेगा, हर चीज देखता है, तो वो फिर हर चीज खुदा आपको हलीम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश जरूर कामयाब होगी। हमने उसके रास्तबाजी के कामों को, उसके निजात के कामों को भी देखना होगा, तब फिर ही सब कुछ हमारे लिए होगा। सैमसन तारक साहब बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छे लिखारी, बहुत अच्छे वकील भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है क्रिसमस के हवाले से। क्रिसमस का गीत रेवरेंड सैमसन तारक साहब, रहमत का दर खुला आज बैतलहम की चरनी में। बहुत खूबसूरत। रहमत का दर किस लिए खुला है? हमारी निजात के लिए, हमारी रास्तबाजी के लिए, हमें बरकत और फजल मिलने के लिए। वो बातों से तो हम नहीं, लेकिन हकीकत में कुछ ना कुछ करेंगे तो सब कुछ होगा। उल्फत का दर्जा मिला आज बैतलहम की चरनी में। उस प्यार का, वो प्यार जो खुदा ने हमने हमारे साथ किया, उल्फत का दर्जा, प्यार का दर्जा, मोहब्बत का दर्जा, कि आज जो मिला वो बैतलहम की चरनी में। आज मनजिए दो आलम बैतलहम की चरनी में किस लिए है? हमारे प्यार की खातिर, हमें बचाने के लिए। हम जो अंधेरों में चले गए थे, बुत परस्ती में, शैतान के हर चीज हमसे रूठ चुकी थी, लेकिन फिर भी खुदा ने हमारी सुन ली और इंसान को फिर अपना बेटा बख्श दिया। किसमें? चरनी में। और वो चरनी में आने वाला है चंद दिनों के बाद। आज मुनज्जी गडरिए आए खुशखबरी पाकर भेड़ों का तोहफा लिए। तो मैं एक आपको बताऊं बात, एक मैं गीत गाता हूँ, संगी आंदे संग चलिए चल बैतलहम नु। तो वो बहुत खूबसूरत, मेरे एक दोस्त इमैनुअल गिल साहब फिलाडेल्फिया में, शायद ने लिख दिया, कंपोज भी किया, मैंने उसको रिकॉर्ड भी कर दिया अपने फर्स्ट पहले वॉल्यूम निजात में। तो मैंने जब ये शेर गाता था कि भेड़ां लाए नजरा पंजाबी सी, तो बड़े लोगों ने इतराज किया इस गल ते, मैं हैरान होया जी, भेड़ां क्यों लिया सन? भेड़ां ते जे गडरिए सन तो उन्हें भेड़ां ही लियानियां सन। हम तनकीद करने वाले लोग हैं, माइनस करने वाले नेगेटिव लोग हैं। और ये बात बहुत अच्छी लिखी तारक साहब, गडरिए आए खुशखबरी लेके भेड़ों का तोहफा लिए, आज मनजीब पैदा हुआ है बशारत उम्मत के लिए, कि उनके पास भेड़ें थी, जो भी था वो उनके लिए तोहफा ले। आज मनज्जी पैदा हुआ बशारत उम्मत के लिए दाऊद के शहर में, आज बैतलहम की चरनी में, दाऊद के शहर में, बैतलहम की चरनी में जो वादे, जो पेशन गोइयां सहीफों में मौजूद हैं, वो खुदा ने वो पूरी कर दी, और वो निजात हिंदा हमारी रास्तबाजी के लिए आ गया है। तीसरा बंद है, तारक सोना मोहर लबान नजर वो लाए थे। बिल्कुल, ये तो मतलब जब से भी वो पैदा हुआ, जब से हमने बचपन से लेकर आज तक ये सारी हिस्ट्री दोहराई जाती है। तारक सोना मोहर लबान नजर वो लाए थे, सजदा करके तोहफे फिर नजर चढ़ाए थे। जो मुस्तफीद हो, जो भी उससे कोई इस निजात से, ईमान से फायदा उठा सकता है, तो फिर जो मुस्तफीद तू भी
तू मुस्तफी, तू भी आज बैतलहम की चरनी से, कि मैं और आप भी आज बैतलहम की चरनी से हम भी सजदा करें, हम भी जो अपने दिलों को नजराने उसके सामने रखे, तो हम भी उस प्यार से, उस उल्फत से, उसकी जो मेहरबानी है उस नूर के सामने जाए, तो हमें भी चरनी से बहुत प्यार मिल सकता है। और हम यहीं से निजात जो है वो शुरू हुई, और यहीं से उसने रास्तबाजी के रास्ते जो इंसानों के लिए तैयार करने शुरू कर दिए थे। उसके बाद बिखरे मोती की पोस्ट है, बचपन में कपड़े गंदे और दिल साफ होते थे। और बिल्कुल ये ठीक बात है। मैं अगर अपना बचपन याद करूं, या जो किसी भी जगह रहते थे, लेकिन गांव की जिंदगी और शहरी जिंदगी में थोड़ा फर्क जरूर होता है। तो जब मतलब मैं 2-4 गल्ला पंजाबी च कहां, बचपन से वाकई कपड़े गंदे सारी रात या जिन्नी देर भी चाननी रात हुंदी सी बाहर खेडी दा, मिट्टी च खेडी दा सी, सवेरे उठना नहा नु के मां ने ठाना, स्कूल चले जाना, फिर आके बस्ता रखना ते। लेकिन कपड़े भले यूनिफॉर्म ही हुंदा सी ते कच्चा जो भी, लेकिन बहुत अच्छा वक्त था। तो लेकिन दिल बहुत साफ होते थे सबके, माँ बाप के जो बच्चे थे अगर वो भी, कपड़े जरूर गंदे होते थे लेकिन दिल साफ होते थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, कपड़े साफ और दिल गंदे हो गए हैं। और दिल बिल्कुल, हम कपड़ों का इतना मुकाबला करते हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में फैशनों की भरमार हो चुकी है। और वो क्या मेकअप वाले जो बड़ी दुकानें बड़े बड़े खुल गए हैं, मतलब जो असलियत है वो छुप चुकी है कपड़ों की वजह से, मेकअप की वजह से। और न एक अक्सर बात ये मैंने पहले भी 1-2 बार कोट की है कि किसी बड़े आदमी की शादी उसके बेटे की, वो तो जाहिर है जब वो दुल्हन लाए तो मेकअप बहुत ज्यादा थी, और सुबह जब वो उठी तो मेकअप तो नहीं थी, वो दिले के कहीं गलती से सामने उसको थप्पड़ मार दिया और सारे घर में शोर मच गया, भाई वो दूल्हे ने दुल्हन को थप्पड़ मार दिया। वजह क्या थी कि जो दुल्हन बन के आई थी वो फेस और था, अब जब सुबह उठी है तो फेस बदले, असली फेस सामने आ गया। तो असलियत जो है वो बहुत सारी चीजों ने छिपा दी है। पहले मस्जिदें कच्ची थी और नमाजी पक्के थे, बिल्कुल ठीक बात है, नमाजी दिल से नमाज, दिल से सजदे करते थे। अब मस्जिदें पक्की हैं और नमाजी कच्चे हैं, क्योंकि अब दिल में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीजें, हमारी सोच सियासी तौर पर या कई किसी न किसी मुकाबले के हवाले से वो अच्छी नहीं होती। अली रेजा उसने लिखा है, उस शख्स से मोहब्बत करना भी हर रोज मरने के बराबर है, जैसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी बिल्कुल सच। लेकिन खुदा बाप और खुदा बेटे को हमारे होने से बहुत फर्क पड़ता है। वो अगर उसको हमारे साथ, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर भेजा, अगर उसको हमारे होने से कोई या ना होने से कोई फर्क ना पड़ता, तो वो हमें अपना निजात जिंदा क्यों भेजता? जिसने हमें निजात दी, जिसने हमारे लिए रास्ते तैयार किए रास्तबाजी के। तो इसलिए लिखने वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन बोलने वाले, समझने वाले, आगे तफसीरें करने वाले मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। उर्दू सफा, ये भी एक पोस्ट है, उन्होंने लिखा, ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना, बिल्कुल आप अगर अच्छाई करते हैं तो आपको इतनी बंदूकें या कलाशनकोव के या और चीजें नहीं जरूरत लेनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा हथियार। जो कुछ आप मोहब्बत से कर सकते हैं वो ताकत से नहीं कर देते हैं, लेकिन वो ताकत को कोई नहीं मानता, क्योंकि वो झूठ की ताकत, मतलब की ताकत। और ये ठीक है कि जब भी आपको ताकत की जरूरत होती है कुछ बुरा करने के लिए, तो फिर आपको शैतान की और शैतानी कामों के लिए कुछ ना कुछ बुराई सोचना पड़ती है।
वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्न अमल और हुस्न अखलाकी काफी है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने कहा कि मोहब्बत से सब कुछ, बड़ी से बड़ी चीज भी नरम हो जाती है। तो जैसे ये बाद में लिखे कि आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सारी, वरना दुनिया में सब कुछ करने के लिए आपका हुस्न अमल और हुस्न अखलाक ही काफी है। क्योंकि अखलाक, मोहब्बत, प्यार से आप देखें दुनिया में कभी जब छोटे थे तो इन चीजों को हवा बनाकर पेश की, ठीक है ये नुकसानदेह है, जैसे सांप है, शेर है, हाथी है, इंसान ने उनको ऐसे किया हुआ है सबको, किस वजह से? प्यार की वजह से। शेर भी उनसे कैसे जफियां डालता है, प्यार की वजह से। सांप गलों में डाल के घूमते हैं और भी, लेकिन वो क्यों? इंसान के प्यार की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से। प्यार जो है, मोहब्बत है, हुस्न अखलाक जो है, ये बड़ी से बड़ी बुराई को भी वो खत्म कर देता है। और यही मेरी ये सारी बातें करने का जो मसला था। यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब यूके से, उन्होंने बहुत अच्छे कुछ शेर लिखे हैं। एक शेर मैंने देखा, तेरा मशकूर हूं जिंदगी के लिए, क्या बात, बहुत खूबसूरत। तेरा मशकूर हूं, तेरा मशकूर हूं जिंदगी के लिए, हर खुशी के लिए, हर किसी के लिए, हर खुशी के लिए कि जो तू देता है, खुश रखता है 24 घंटे। हम अगर 24 घंटे में, ठीक है परेशानी है तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन खुश रहें तो इसका मतलब है कुछ कर रहे हैं, उसका फजल, उसकी बरकतें हमारे साथ है। हर खुशी के लिए, हर किसी के लिए, जो कुछ भी है तेरी मेहरबानी, तेरे फजल से है। क्रिसमस के हवाले से उन्होंने लिखा है, वो देखने में इंसान फितरत खुदा की है। वो देखने में इंसान है क्योंकि वो इंसान बन के आया था, वो इंसान बन के दुनिया में पैदा भी हुआ। माँ मरियम के बदन से इंसान ही पैदा होते हैं ना, तो वो इंसान बन के, लेकिन फितरतन वो खुदा था। यही लिखा है कि देखने में इंसान था लेकिन फितरत खुदा की है, क्योंकि उसमें जो फितरत, और फितरत वो ही होती है। और मैं अक्सर आज भी कुछ बातों पे सोच रहा था कि हम कहते हैं मां पर धी, पिता पर घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो पंजाबी च असी कि जिस तरह दी मां उस तरह दी बेटी, जिस तरह दा प्यो उस तरह दा पुत्र। और क्योंकि वो खुदा का पुत्र था, वो खुदा था, खुदाई थी उसमें, तो फिर जैसा खुदा था वैसा ही बेटा होना था। और उसने वो बेटा बन के खुदा को साबित कर दिया। आप उसके पाक कलाम की बातें पढ़े तो सब, हर जगह पे उसने, बहुत जगह पर जो ये जिक्र किया कि मैं बाप, जो मुझे बाप कहता मैं वो करता, मैं बाप की बातों पर अमल करता हूँ। और ये हर जगह दुनियावी तौर पर कोई बाप का जिक्र नहीं करता जब वो अपने पांव पे खड़ा हो सकता है, उस वक्त जिक्र करता है जब वो चला जाता है। लेकिन जिंदगी में बाप की किस्मत में कोई तारीफ नहीं होती बच्चों से। ये क्या वजह है? ये भी सोचने वाली बातें। बहरहाल हर एक बात उसकी सबसे जुदा सी है, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। उसने हर एक बात उससे अलग सी, इंसान जरूर था लेकिन कुदरत उसमें थी, जलाल उसमें था और रास्तबाजी उसमें थी, नजात उसमें। दुनिया की कौन सी चीज दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे में नहीं थी। इब्लीस ने बनाई जो थी हमारे गिर्द, उसने फंसी लाकर अब वो गिराती है। जो भी वाकई दुनिया के अंधेरों में थे, इब्लीस के कब्जे में थी, शैतान के कब्जे, लेकिन शैतान की उस दीवार को उसने आकर बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दी। हर चीज जो शैतान, जो बहुत परिस्थिति, क्या दुनिया में गुनाह क्या नहीं होते थे, तो वो सब कुछ उसने खत्म कर दिया, शैतान को मात दे दी। अब जिंदगी में मेरी कोई कमी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। अब जिंदगी में मेरी कोई कमी नहीं, मुझको हर एक
ही उसने अता की है। बिल्कुल उसने वो कुछ अता कर दिया कि किसी भी इंसान के बस की बात नहीं कि ये सब कुछ वो कर दे। वो कौन था? वो खुदा का बेटा था, इसलिए उसने सब वो किया हमारे लिए, रास्तबाजी के रास्ते तैयार किए, निजात के लिए, हमारे लिए वो जो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे उसने खोल दिए। मुझ पर हर एक शय ही उसने अता कर दी, किसी चीज की कमी नहीं रहने देती। लेकिन हम इंसान होते हुए फिर भी उसकी बातों पर अमल नहीं करते। एक शेर और है, आसमान पे तारे का देखना ही काफी नहीं है। बहुत खूबसूरत लिखा है, आसमान पे तारे का देखना नहीं काफी, उससे मिलना है तो फिर कुछ सफर भी जरूरी है। मतलब अगर हमें उसको मिलना है, जैसे ये एक्चुअली मेरे ख्याल उन्होंने जो मिसाल दी है, सफर जरूरी है, कि मजूसियों ने सफर करके उस बैतलहम की चरनी में उसको आकर सजदा की, उसको मिले। और आज भी लोग कोशिश करते हैं, भले वो चरनी उसी जगह, आज भी लोग सफर करके वहां उस चरनी को देखने जाते हैं, उस निजात को, उस रास्तबाजी के खुदा को, खुदा के बेटे को, जहां वो पैदा हुआ था वो देखने जाते हैं। और बिल्कुल सच्ची बात है, उस आसमान पे तारे का देखना ही का नहीं काफी, उससे मिलना है तो कुछ सफर जरूरी है। बिल्कुल हम देखते यश जो कुछ लिखते रहे, आसमानी तारे की ये बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में उसको कबूल करना, उसकी बातों पर अमल करना, उसकी रास्तबाजी के बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्रिसमस गजल, नहाल अनायत गिल, गिला द गिल, बहुत अच्छा लिखा। बख्शिशों को मिटाने का दिन है। कौन बख्शिशों को मिटाने का? खुदा यीशु मसीह के मतलब लिखा है, क्रिसमस के मतलब लिखा है, सारी रंजिशों को मिटाने का दिन है, आज सबको मनाने का दिन है। और यही क्रिसमस का पैगाम होता है कि हम सबको मनाएं, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी हैं, हम जो साल भर हमने किए गिले शिकवे वो सब खत्म करें और उस चटनी के पास जाएं, निजातिंदा के पास जाएं, रास्तबाजी के रास्ते के पास जाएं और सब गिले शिकवे खत्म करें। यह है यौम वलादत, उल्फत की, मोहब्बत की यौम वलादत है। उसका आना जो प्यार की अलामत है, क्योंकि वो तो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। आज सर को झुकाने का दिन है। हम जो ऐसे रहते हैं उसके सामने झुकने का दिन है। अपनी अकड़, अपनी मैं, अपनी खुदी को खत्म करने का दिन है और एक दूसरे को रूठे हुए को मनाने का दिन है। सारे गिले शिकवे खत्म करने का दिन है जन्मदिन खुदा के बेटे का। क्या बात, बहुत अच्छा नहा लेना है जन्मदिन खुदा के बेटे का, दिल को चरनी बनाने का दिन है। और जिन दिनों में तो मेरी कोई ना कोई बात होती है हर वक्त के दिल को चरनी बनाए, यीशु की चरनी बनाए, यही ख्याल करे कि ये वही चरनी है जो स्तब्बल में पड़ी हुई, आज भी वो स्तब्बल। तो हम भी इस चरनी को खूबसूरत बनाए कि बजाय इसको जो 25 दिसंबर को वो उस चरनी में नहीं, हमारे दिलों की चरनी में आ जाए और हम कबूलियत के बहुत नामवारों में, रास्तबाजी के रास्ते पर चलने वाले में वो निजात के लिए आए और हम उसके निजात याफ्ता लोगों में शामिल हो जाए। अपने हिस्से की रोशनी बांटो। क्या बांटो? रोशनी, खुशी। एक दूसरे के चेहरे पर नजर है खुशी कि जो खुदा का नूर उस चरनी में वो रोशनी हमारे चेहरों पर नजर आए कि आज जो मुनज्जी दो आलम आ चुका है। आज का दिन है बरकतों वाला, आज का दिन है बरकतों वाला, अल मसीहा के आने का दिन है। इससे बड़ा दिन कौन सा हो सकता है? बड़ा दिन से बड़ा दिन जो बहुत, इससे बड़ा दिन कौन हो सकता है कि हम उस मुनज्जी दो आलम के अल मसीहा के आने का दिन है, आने का दिन है 25 दिसंबर को। और इससे आज का दिन है बरकतों वाला। इससे बड़ी बरकतें वाला दिन कौन सा हो सकता है जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं,
खुदा के बेटा जहां पर मौजूद है और जिसका सदियों से इंतजार था। नविश्तों में, पेशन गोइयों में खुदा ने इस हवाले से बहुत कुछ अपने नबियों के जरिए से जो लिखा गया था, वो बरकतें, वो फजल, वो रहमतें चरनी में आके मौजूद हैं। हम उन रहमतों, उन फजलों को हम उनसे क्यों नहीं फायदा उठाते? हम दुनियादारों के खुदा को पूछते हैं, लेकिन जो हकीकत में खुदा है, जो रास्तबाजी का खुदा है, जो निजात का खुदा है, उसको क्यों नहीं हम पूछते? हम उसकी बरकतों से क्यों नहीं फायदा उठाते? जबकि खुदा ने खुद कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तो हम उस फजल के तहत क्यों नहीं चलते कि हमने वो निजात सब कुछ हमें मिले? आखिरी शेरा, आओ हम दो सुना, आओ हम दो सुना निहाल करे। उसका नाम तखल्लस नहाल नायत गलहर, और निहाल जो वो तखल्लस करता है गुजरा वाले से तल्लक है, उसका नौजवान शायर है। तो गीत गजलें ये गाने का दिन है। और मैं बड़ा परेशान हुआ कि बचपन से लेकर अब तो काफी साल हो गए, चर्चेस में, क्वायर में, मुकाबलों में किए भी, कराए भी, सब कुछ, और मैं थोड़ा सा दिल खराब हुआ। अभी एक वक्त था कि हम जी, लेकिन खुदा कोई ना कोई रास्ता तो कर निकाल देता है, मुझे अपनी हमदो सताइश करने के लिए आप लोगों के सामने पेश कर देता है। और जो कुछ भी टूटे फूटे लिबास जो भी हैं, मुझे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे वसीले से मेरा दोस्त अगर कहता है कि अगर कोई आपके वजह से 1 2 3 रूह भी बदल जाती है तो कोई बड़ी बात है, लेकिन मुझे पहले बदलना जरूरी है। जब अगर मैं ही गुड़ खावांगा तो फिर दूसरे नु गुड़ खान तो मना नहीं कर सकता ना मैं। ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा नहाल नायतगर। तो जवेद नजीर, कुछ बातें हैं रह गई थोड़ी सी, ये सोचते थे कि बहुत गुफ्तगू होगी, तुम्हारे शहर में आकर भी तनहा है। बहुत अच्छे, लेकिन खुदा यीशु मसीह के आने से हम तनहा नहीं, उस निजाती के आने से हम तनहा नहीं रहे। लेकिन अगर हम मुत्हिद हो जाए, मसीही कौम बन जाए, तो हम तनहा नहीं है। रब आवान, दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती, और ये बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट। और यही मेरा जो शो है, सच्ची और अच्छी बातें। तो आज का टॉपिक है निजात और रास्तेबाजी, और हमें कोई नहीं, किसी रास्तेबाजी से हम कोई नहीं रोक सकता, शैतान भी नहीं रोक सकता, जब तक कि हम खुद नहीं हार मानते। अगर हम कंफ्यूज हो जाते, कमजोर हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हार गए। हमने हर हाल में खुदा के रास्ते में किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए दिल नहीं थोड़ा करना, और हमें उस निजात याफ्ता के चलने की तरफ चलना शुरू करते जहां तक निजात मौजूद है, और वो खुदा यीशु मसीह है। बहुत खूबसूरत। और आज का शो जो मेरा जो निजात और रास्तबाजी के हवाले से इख्तिताम पजीर होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकतों और फजलों से नवाजे, और हम कोशिश करें। क्यों जी? कोशिश तब भी होती, कोशिश लफ्ज तो हम कह देते हैं, कोशिश तो करके देखो, लेकिन कोशिश पर अमल करना पड़ता है, उस कोशिश के लिए भागना पड़ता है, उस कोशिश के लिए दिन रात सोचना पड़ता है। कोई भी काम करे भी, मैं अपने हवाले बहुत देता रहता हूं, और ये को मैं बुरी अब मैं ये शो करता हूं, यकीन करें, उठते बैठते जो भी, जैसे ये मैंने एक पहले शेर पढ़ा था, खुशामद जो करे फनकार है वो, जो सच बोले यहाँ गद्दार है वो। तो इस पे मैंने सोचना शुरू कर दिया, फिर ख्याल तो आते हैं, और हम दुनियावी तौर पर ये बहुत बड़े फनकार बनते हैं अगर हम किसी के सामने हम जो उसको झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत की बातें। लेकिन फनकार कौन है? जो खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करता है, उसके रास्तबाजी के कामों पर चलता है, उसके निजात के कामों पर चलता है, वो फनकार है।
झूठ के लिए तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन सच के लिए अगर हम किसी भी शहर, किसी भी गांव से किसी को भी अच्छे काज के लिए, अच्छे काम के लिए अगर हम 10 बंदे भी इकट्ठे कर ले तो बहुत बड़ा, वो 10 बंदे नहीं हमें मिलेंगे अच्छे काम करने के लिए, बुराई के लिए ग्रोहों के ग्रोह मिल जाएंगे। और मैं इस बात को बोलता ही चले जाऊं तो शो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा शो अक्सर मैं कोशिश करता 30-35 मिनट, लेकिन वो 40 से भी ऊपर चला जाता है। और आपकी मेहरबानी कि आप सुनते हैं, हम जो कमेंट्स भी आते हैं, और बहुत कुछ, मैं बहुत खुश हूँ क्रिसमस की इस खुशी के हवाले से कि एक बार फिर खुदा मुझे और आपको ये दिन दिखाने के लिए लेके जा रहा, नए साल देखने के लिए लेके जा रहा, 2020 में हमें लेके जा रहा है। और हमने हर लिहाज से रास्तबाजी के काम करने चाहिए, तौबा की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम अपने मुनज्जे दो आलम के लिए, जो निजात का वारिस है, जो निजात हिंदा है, जिसने अपनी जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, हमने उसके चलने की तरफ भी जाना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।